11. So I welcome you all to the YouTube channel of Winning Edge. As you know that we are doing a series of Sainik School and RIMC, and we are studying the science. So we are going to start a new chapter named by international organization, which is very important for your exam prospectus. See, international organization, the word already contain a word name as nation in between. So you have already understood the inter means between and nations. For example, inter school games. What does inter means? Between the schools. ठीक है, तो schools के बीच में उसे हम inter कहते हैं. तो international means between the nations. तो बिटवीन द नेशन जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस बनती है, जिनका एक मेन एम होता है या जिनका एक कॉमन गोल होता है, जिन नेशंस का एक कॉमन गोल होता है, दोज नेशंस व्हिच हैव कॉमन गोल आर कॉल्ड एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. सी, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो एक कॉमन गोल होता है. फॉर एग्जांपल, आपके सोसाइटल लेवल में भी ऑर्गेनाइजेशंस आर बीइंग डेवलप्ड. फॉर एग्जांपल, यू कैन सी द ड्यूरिंग द गणपति विसर्जन और ड्यूरिंग योर होलिका दहन, यू कैन सी दैट आप लोग खुद ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हो और आपका एक कॉमन गोल होता है. कॉमन गोल क्या होता है? टू सेलिब्रेट द गणपति विसर्जन एज बिग एज इट कुड बी. ओके, सो सेम इज द केस विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे जो आपके नेशंस होता है उनका कुछ ना कुछ कॉमन गोल होता है. तो जब हम आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, जब हम आगे बढ़ते हैं उनका ये एक तरह से इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी आप कह सकते हैं. व्हाई इंटरनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन? बिकॉज इट इज बिटवीन द गवर्नमेंट्स. See, different countries have different government, and between these government, these things take place. So why does it takes place? To keep peace, to keep security, या फिर peace, security, ये सब चीजें रखने के लिए ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस का जो है वो डेवलपमेंट होता है. ठीक है, अब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है. फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड नेशंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट यूनाइटेड नेशन इन कमिंग वीडियो, यानी इसी वीडियो में हम आगे पढ़ने वाले हैं. एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सी, समथिंग यू कैन स्टडी फ्रॉम द नेम ओनली. यूनाइटेड नेशंस, नेशन को यूनाइट करना. तो व्हेन in United Nations main goal is to unite the nations, to make them one. So different types of organizations होते हैं. देखो, एक United Nations, see the word itself said as United Nations, मतलब nations को unite करना. ठीक है, तो and World Health Organization. World Health Organization का मतलब क्या है? Health, world और health. To take care of the health of whole of the world is responsibility of World Health Organization. This was very popular in previous days. Whenever coronavirus जब आया था, वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलर ये टर्म हुई थी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, उसने क्यों नहीं अभी तक मेडिसिन बनाई, ये सब. उसके बाद आते हैं हम आपका नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. This is also an organization which we are going to study about it in further videos. Okay, now as I have already told you that international organization is a organization which have a common goal. इन सब का एक common goal होता है, जैसे to keep peace, to keep security, to keep various military alliance also is there. For example, NATO is in military alliance. तो ये अलग अलग इनका कुछ ना कुछ main motive होता है. They have similar motive. These nations have similar motives. Now what we are going to study is about the United Nations. अब हम United Nations के बारे में पढ़ेंगे. What is United Nations? As the name suggests, unite to unite the nations. See, there were two world wars. दो world wars लड़े गए थे. After which a lot of destruction was caused, a lot of human died in that world war, in these two world war. However, after the first world war, League of Nation, very important point, ये आपका जो है पिछले साल सैनिक स्कूल में पूछा गया था कि how was United Nation formed, या United Nation was formed by replacing which of the nations. So League of the Nation was which of the organization, sorry, तो League of the Nation was the organization जिसको replace करके आपका United Nation हुआ था. हालांकि जो League of Nations है वो World War I के बाद बना था. World War I उसके बाद वो क्या हो गया? Unsuccessful. It became unsuccessful. Why? Because World War II already happened. World War II happened. So League of Nations was removed and United Nations came in coexistence. Okay, so United Nations का मतलब क्या है? To unite the nations, to unite the nations. Nations को एक साथ करना ही आपका United Nations का काम है. And to और unite करने का क्या काम है? उसके अलावा क्या क्या काम है? Unite कैसे कर सकते हो आप? Peace,
सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पीस रखना पड़ेगा नेशंस के बीच में, उसके बाद आपको सिक्योर करना पड़ेगा नेशंस को. सो इट्स एम इज टू create peace, to maintain security, to look after the health of the health of the various citizens of various nations. Okay, तो ये सारे के सारे काम किसके हैं? आपके यूनाइटेड नेशंस के हैं. अब देखो मैंने क्या बोला, डेवलप फ्रेंडली रिलेशनशिप अमंग द नेशंस. तो अराउंड 195 कंट्रीज जो है वो आपका यूनाइटेड नेशंस के पार्ट है. लगभग वर्ल्ड का मोस्ट ऑफ द मतलब अराउंड 98% जो पार्ट है या 98% जो कंट्रीज हैं वो आपके ऑलरेडी यूनाइटेड नेशंस के पार्ट है. ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के क्या है? पार्ट है. अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज सच अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, एंड हाउ डज द फंडिंग कम इन दिस यूनाइटेड नेशन? सो द फंडिंग कम फ्रॉम द मेंबर नेशन इटसेल्फ. आपकी जो मेंबर नेशंस है वहीं से आपकी जो फंडिंग है वो आती है. आपके जो फंडिंग है, जो पैसा है, वो सब कहां से आता है? बाय मेंबर नेशन. इट इज डोनेटेड बाय मेंबर नेशंस. वन अदर थिंग इज दैट जैसे बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, मिलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन, और ये सारे जो बड़े बड़े फाउंडेशन है, टाटा फाउंडेशन, ये सारे के सारे जो फाउंडेशन है, ये जो बड़े बड़े फाउंडेशन है, दे ऑल्सो डोनेट देयर मनी इन दिस वन. सो यू हैव नाउ नोन द आंसर कि कहां से आपका जो फंडिंग है वो सब आती है. तो अराउंड 195 कंट्रीज इसके मेंबर्स है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव किया जाने वाला आपका ऑर्गेनाइजेशन है. अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे इसका हेडक्वार्टर क्या है, तो हेडक्वार्टर है, इट इज इन न्यूयॉर्क. व्हाट इज हेडक्वार्टर? हेडक्वार्टर मींस द मेन ऑफिस. द मेन ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज इन न्यूयॉर्क. The main office of the United Nations is in New York. So this is the flag of United Nations, which we are going to study further. So idea of United Nations, as I have already told you, that after the collapse of League of Nations, this idea of United Nations came into existence. Okay. Now, जो idea of United Nations है उसको देने में दो लोगों का बहुत बड़ा हाथ है. एक है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, this person, and विंस्टन चर्चिल, who was the PM of the Britain at that time, and this person, Franklin D. Roosevelt, was the president of United States at that time. Why Franklin D. Roosevelt? Because you know that after the bombing of Nagasaki and Hiroshima, he became one of the powerful personality in the world politics. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो एक powerful personality बन गया आपके world politics में. तो अब हम आते हैं फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस. सी, जब यूनाइटेड नेशंस बढ़ा तो 50 जो है उसके फाउंडिंग मेंबर्स थे. ठीक है, मतलब 50 लोग जो है वो टुगेदर आके उन्होंने बोला हाँ ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो पीस को जो है वो प्रोपोगेट करे. ठीक है, तो ये जो 50 नेशंस थे, मुझे प्राउड फील होता है कि इंडिया भी इसका एक पार्ट था. हालांकि उस समय हम, क्योंकि 26 जून 1945 को ये साइन किया गया था, हालांकि उस समय हम वी वर पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, बट वी हैव साइंड दैट एक्सेशन और वी हैव साइंड दैट थिंग, दैट चार्टर. ठीक है, जिसमें आपका ये हम लोग यूनाइटेड नेशंस के पार्ट बने थे. हालांकि एक कंट्री था पोलैंड, वो उसके कुछ ही दिनों के बाद 15 अक्टूबर को वो जो है उसको साइन करता है इंस्ट्रूमेंट को, और इसके बाद ये भी पोलैंड भी इसका पार्ट बनता है. तो 51 जो है वो फाउंडिंग मेंबर्स थे आपके यूनाइटेड नेशंस के. तो अब हम पढ़ेंगे कि देखो आपका जैसे आपकी बॉडी है वैसे ही यूनाइटेड नेशंस इज आल्सो अ बॉडी, एंड यू नो दैट यूनाइटेड नेशन अलोंग योर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, और कुछ ऑर्गन्स कुछ ना कुछ फंक्शन करते हैं. लाइक हैंड का कुछ और फंक्शंस है, आपके फेस का कुछ और फंक्शंस है, तो सबके अपने अपने फंक्शंस होते हैं. सेम इज द केस ऑफ यूनाइटेड नेशन. सो यूनाइटेड नेशंस is also made up of different organs which have different functions. For example, General Assembly, Security Council, उसके बाद Tertiary Council, International Court of Justice, Social and Economical Council, and then these are the councils these are the sub part of the United Nations which are part of your Economical and Social Council. यहाँ तक का मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा. तो अलग अलग organs के बारे में हमने बात करी. Now the first one is the General Assembly. You can see this is this is the General Assembly जो ऐसा कुछ दिखता है. ठीक है, तो General Assembly is made up of 195 countries. So all the countries
who are part of United Nations are the part of your General Assembly. ठीक है, जितने भी कंट्रीज आपके यूनाइटेड नेशन के पार्ट है वो आपके जनरल असेंबली के भी पार्ट हैं, are also a part of United Nations. Okay, so how many members are there of General Assembly? 195. General Assembly, see, it is like a assembly. Assembly आपके स्कूल में भी होता होगा. Assembly means it is like a gathering. Gathering होता है जहाँ पे different peoples, जो आपके different representative हैं different countries से, वो आके यहाँ पे discuss करते हैं various important issues. अच्छा, representative कैसे बन सकते हैं? या तो आपको आपकी गवर्नमेंट चूज करती है, योर गवर्नमेंट विल चूज यू एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया. ओके, फॉर दैट यू विल हैव टू वर्क हार्ड. ऐसे वैसे को वो जो है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं चूज करती है. ठीक है, यू हैव टू क्रैक वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स. Okay, so now further we are going to do, see, headquarter of this General Assembly is also in New York. आपका जनरल असेंबली का जो हेडक्वार्टर है वो भी आपका न्यूयॉर्क में ही है. ठीक है, इतना आपके समझ आ गया. नाउ हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली? सो द करंट प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली इज वॉल्कन बॉस्कीर. अभी 2020 में वीडियो बन रही है तो मैं 2020 का बता रहा हूं. अब आप इसको 2022 में देखोगे तो मुझे नहीं पता तब कौन बनेगा, बट नाउ करंटली इट इज वॉल्कन बॉस्कीर. ओके, वॉल्कन बॉस्कीर. नाउ सी, वॉल्कन बॉस्कीर इज फ्रॉम टर्की. ठीक है, ये टर्की से थे. ठीक है, नाउ एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर का है, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके ये पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, या हु वाज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट, और हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, हु वाज द फर्स्ट एशियन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. तो आपकी वो कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित. शी वाज विजय लक्ष्मी पंडित. शी वाज फर्स्ट एशियन, फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस. ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तो आप बोलोगे विजय लक्ष्मी पंडित. हु वाज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू प्रिसाइड ओवर द जनरल असेंबली? अगेन विजय लक्ष्मी पंडित. ओके, नाउ ये जनरल असेंबली के बाद आते हैं हम सिक्योरिटी काउंसिल. एज द नेम सजेस्ट, सिक्योरिटी मतलब सिक्योर करना, आपको सिक्योर करना. थ्रू सिक्योरिटी काउंसिल्स का मतलब क्या होता है? टू सिक्योर यू विद, अगर आपको कोई थ्रेट है तो वहां पे आपका जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. सी, यूनाइटेड नेशंस की अपनी आर्मी है. ठीक है, यूनाइटेड नेशंस हैव इट्स ओन आर्मी, एंड फ्रॉम वेयर, देखो यूनाइटेड नेशन कोई कंट्री तो नहीं है, तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सो फ्रॉम वेयर डज द आर्मी कम? सो द आर्मी कम फ्रॉम द मेंबर नेशंस. ये देख रहे होगे, ब्लू हेलमेट बहुत ही फेमस आर्मी है. तो यहाँ पे जहां पे भी, स्पेशली इन अफ्रीकन कंट्रीज, स्पेशली इन वेरियस कंट्री विच आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड, और जहां पे जो है अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है या बहुत ज्यादा सिविल वॉर है, तो वहां पे प्रोटेक्ट करने के काम कौन सा आता है? आपका अपना प्यारा सिक्योरिटी काउंसिल. टू सिक्योर, सी, सिक्योर मीन्स सिक्योरिटी. ठीक है, तो सिक्योरिटी काउंसिल का मेन मीन्स क्या है? टू सिक्योर द मेंबर नेशन. ओके, नाउ सी, it is the organization, या it is the part of the organ of the United Nations, जिसका मेन फंक्शन उसके अलावा क्या होता है? टू रिमूव एनी मेंबर स्टेट, किसी भी मेंबर स्टेट को ये रिमूव कर सकता है. टू ज्वाइन, किसी भी मेंबर स्टेट को ज्वाइन कर सकता है. ये सारा का सारा जो मेन फंक्शन किसको दिया गया है? आपके सिक्योरिटी काउंसिल को. वेरियस पीस कीपिंग मिशंस करता है. टू पीस कीपिंग मिशंस क्या है? जो आपके पीस प्रोवाइड करना, जैसे कि मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता दिया है, वो सारे के सारे. ठीक है, अच्छा, अब आप बोलोगे सर हो सकता है कि कुछ ऐसे मेंबर नेशन होंगे जो आपके यूनाइटेड नेशंस की बात नहीं सुनते. तो उनका क्या होगा? वेरी इजी. उनका क्या होगा? उनपे सैंक्शन लगेंगे. सैंक्शन क्या होता है? एक तरह का आपका फाइन. ठीक है, जैसे आपको फाइन लगता है ना स्कूल लेट आने में, बट इट्स नॉट दैट लाइट वाला फाइन. बहुत हैवी फाइन लगता है आपका, किसमें? यूनाइटेड नेशन जो है जब वो लगाता है, और वो लगाने का काम किसका है? अगेन इट इज द वर्क ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. अब देखो, दो तरह के मेंबर्स होते हैं आपके सिक्योरिटी काउंसिल में. एक होते हैं परमानेंट मेंबर और एक होते हैं आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स. अच्छा, परमानेंट मेंबर्स क्या होते हैं? अब आप पूछोगे, सी, जब आपका सिक्योरिटी काउंसिल बना था तो उस समय जो वर्ल्ड का स्टेटस था वाज नॉट वेरी लाइक
वेरी पावरफुल, मतलब इकोनॉमिकली बहुत सारी कंट्री बैकवर्ड थी, तो यहाँ पे कुछ परमानेंट मेंबर्स बना दिए गए, अकॉर्डिंग टू द एरिया। अब परमानेंट मेंबर्स में कौन कौन से थे? 5 परमानेंट मेंबर्स थे। 5 कौन कौन से परमानेंट मेंबर्स थे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। फ्रांस, यूके, अमेरिका, ऑब्वियस सी बात है अमेरिका होगा, चाइना, और जो बाकी का बच्चा था, यूके मैंने बोल दिया है, ठीक है, फ्रांस मैंने बोल दिया है, रशिया बोल दिया है, और आपका कौन सा था? फ्रांस, रशिया, यूके, ब्रिटेन एंड चाइना, ठीक है, चाइना। ये आपके उस समय के जो मेन परमानेंट मेंबर्स थे। ये आप इनका फ्लैग्स भी देख सकते हो, दिस इज ऑफ चाइना, दिस इज ऑफ यूएसए, दिस इज ऑफ ब्रिटेन, दिस इज ऑफ यूएसए, दिस इज ऑफ योर फ्रांस एंड दिस इज ऑफ योर रशिया, ठीक है। फ्रांस और रशिया का ऐसे ऐसे करके ये आपका फ्लैग्स भी है। अब उसके बाद अलोंग 5 परमानेंट मेंबर्स कुछ ऐसे नॉन परमानेंट मेंबर्स भी बनते हैं, ठीक है। अलोंग विथ 5 परमानेंट मेंबर्स देयर आर सर्टेन नॉन परमानेंट मेंबर्स व्हिच हैव 10 व्हिच आर जनरली 10, सो 10 आपके होते हैं, ठीक है। ये 2 साल के लिए 2 years for a 2 years they are being elected by यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से आपके इलेक्शन होता है। अब ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कोई भी इलेक्शन हो जाए, इट डजंट हैपन लाइक कि आपका कहीं से भी कोई, तो इट डिपेंड अपॉन द रीजन, ठीक है। अलग अलग रीजन पे ये है आपका डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, अभी देखो 2 आपके एशिया पैसिफिक से आते हैं, ठीक है, कुछ आपके ईस्टर्न यूरोप से आते हैं, कुछ अफ्रीका से, कुछ वेस्टर्न यूरोप, कुछ कैरिबियन आइलैंड और कुछ लैटिन अमेरिका, ठीक है। कैरिबियन आइलैंड और लैटिन अमेरिका से आपके कुछ रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, कुछ आपके वेस्टर्न यूरोप से, कुछ ईस्टर्न यूरोप से, कुछ एशिया पैसिफिक से और कुछ अफ्रीका। नाउ यू मस्ट आस्क द एशिया पैसिफिक रीजन क्या है। सी, एशिया तो आप समझ गए होंगे, ये वाला। पैसिफिक मतलब जो पैसिफिक ओशन के जो आइलैंड है, सो विच इंक्लूड योर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ऑल्सो, ओके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी इंक्लूड करेगा। ईस्टर्न यूरोप वाले पोर्शन, वेस्टर्न यूरोप वाले पोर्शन, अफ्रीका, होल अफ्रीका, ठीक है। सी, अब हम आगे बढ़ते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में, ठीक है। तो अब हम आते हैं उसके अगले ऑर्गन पे। अगला ऑर्गन है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। योर नेक्स्ट ऑर्गन इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को समटाइम हम क्या कहते हैं, समटाइम हम उससे वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं। जैसे आपका क्या होता है कि अगर कोई फाइट हुई तो हम क्या बोलते हैं, कोर्ट में देख लेंगे। Whenever there is a fight, we say that कोर्ट में we will be seeing you, okay, so कोर्ट में हम देख लेंगे। तो वही चीज यहाँ पे भी होता है। अब देखो नेशंस के बीच में भी तो फाइट होती है, कभी पानी को लेके, कभी वाटर को लेके, कभी एयर को लेके, so there are various fight, so these fight are being resolved at international court of justice relating to your boundary, relating to your everything, okay, so ये सारे के सारे जो केसेस हैं उनकी सुनवाई कहां पे होती है, उनकी सुनवाई होती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका क्या होता है, जो आईसीजे है, ठीक है। आईसीजे में जो है कितने आपके वो है, देखो यहाँ पे आईसीजे का हेडक्वार्टर्स पहले हम पढ़ते हैं, तो आईसीजे का हेडक्वार्टर है द हेग में। अच्छा, अब आप बोलोगे द हेग कहाँ पे, नीदरलैंड्स में। ये आपका न्यूयॉर्क है जहां पे यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली के क्या है, हेडक्वार्टर्स है। यहाँ पे द हेग में क्या है आपके, तो द हेग में है आपका किसका हेडक्वार्टर्स, आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। और ये तो आपको पता है, ये दिस इज आवर इंडिया, ओके। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू अबाउट द हेडक्वार्टर्स जज टर्म। सी, जो जज है वो कहां से आते हैं, ऑलरेडी मेंबर नेशन से आते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी देयर आर अराउंड 9 जज, ओके, एंड नंबर ऑफ पोजीशन इज 14, ओके। अब आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, देयर आर अराउंड 15 जजेस और उनका जो टर्म होता है वो 9 इयर्स का होता है। उनका टर्म कितने इयर्स का होता है, 9 इयर्स का होता है। तो बच्चे अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो अगला ऑर्गेनाइजेशन है, या सॉरी अगला ऑर्गेनाइजेशन नहीं, अगला ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, उसका नाम है द इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, और इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इकोसॉक भी पढ़ते हैं। अच्छा, लीगल स्टेटस क्या है, लीगल स्टेटस मतलब कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के जो अभी इनएक्टिव हो चुके हैं, मतलब जो विच आर नो मोर इन फंक्शन। सो देयर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन्स मैनी नहीं है, एक ही है वैसे तो,
तो वो जो है वो इनएक्टिव हो चुका है। तो ये एक्टिव है, अभी भी ये प्रेजेंट में फंक्शन करता है, ठीक है। जो आपके हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। अच्छा, इकोसॉक का मेन फंक्शन क्या है, देखो वर्ल्ड बता रहा है इकोनॉमिकल एंड सोशल, जो आपका ये वर्ड है वो क्या बोल रहा है, इकोनॉमिकल एंड सोशल। तो इकोनॉमिकल मतलब आपका मनी से रिलेटेड, और सोशल मतलब जो सोशल इवल्स हैं या जो सोशल थिंग्स हैं, सोसाइटी में सोशली डेवलप करना, ये किसका काम है, आपका इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, टू डेवलप द मेंबर नेशन इकोनॉमिकली एंड सोशली। जैसे किसी को लोन देना है, ठीक है, वो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देगा, जो कि इसी का पार्ट है। कहीं पे हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो अगेन इसका सेमी पार्ट है, ठीक है। तो हम ऐसे करके धीरे धीरे इनके फंक्शंस के बाद, इनके अदर ऑर्गन्स के भी बारे में पढ़ेंगे, जो इसका सब ऑर्गन्स है, ठीक है, किसके, यूनाइटेड नेशंस के। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपका इंडिया है और ये यहाँ पे न्यूयॉर्क है, आपका बिल्कुल अमेरिका के बिल्कुल वन ऑफ द कोस्ट सिटी। ओके, नाउ द टर्नशिप काउंसिल, सी दिस इज द ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस विच इज नाउ इनएक्टिव। वो आपकी क्या हो चुकी है, विच इज इनएक्टिव हो चुकी है। इनएक्टिव क्यों हो चुकी है, सी इट्स फंक्शन वाज टू लुक आफ्टर द कंट्रीज विच आर जैसे आपका क्या है, अलग अलग कंट्रीज थी, जैसे इंडिया था, इंडिया वाज गवर्न्ड बाय ब्रिटेन। तो कैपिटल कंट्रीज को, कंट्रीज जो है उनके अंडर जो कंट्रीज है उनको देखना, या उनका अगर कोई गलत मिसयूज तो नहीं हो रहा है उनके नेशंस के साथ, तो उनको देखना जो है वो इस टर्नशिप काउंसिल का काम था। ट्रस्ट क्रिएट करना, ठीक है, तो ट्रस्ट क्रिएट करना। उसके बाद इसका ये जो है अभी इनएक्टिव हो गया आफ्टर 1991, ठीक है, 1994 में। क्योंकि जो लास्ट कंट्री थी पलाऊ, वो जो पहले किसका पार्ट था, एक पैसिफिक आइलैंड में था, और वो अब जो है वो क्या हो चुका है, फ्री हो चुका है। तो अभी कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो आपको मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि विच इज गवर्न्ड बाय डिफरेंट कंट्री, या विच इज गवर्न्ड बाय पीपल्स ऑफ अदर कंट्री। ओके, नाउ टर्नशिप काउंसिल के बाद आता है सेक्रेटरीट। सी जैसे आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन हेड होता है, फॉर एग्जाम्पल स्कूल का हेड एक प्रिंसिपल होता है, सोसाइटी का हेड एक सेक्रेटरी जनरल होता है। सो सेम इज द केस विद यूनाइटेड नेशंस। सो द हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज कॉल्ड एज सेक्रेटरी जनरल। ओके, सो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, एग्जीक्यूट करना। सो इसका मेन फंक्शन क्या है, एग्जीक्यूट करना, कैसे भी एग्जीक्यूट करना है। तो इसका मेन फंक्शन कैसा फंक्शन है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। इसका कैसा फंक्शन है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ये कब बना था, 1945 में, जब यूनाइटेड नेशन बना था, उसी के टाइम ये बना था, ठीक है। उसके बाद इसका जो हेड है वो कौन है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है। इसको हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस भी कहा जाता है। अभी प्रेजेंट में कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, ही इज द मैन, ठीक है, जो अभी प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट है। किसके प्रेसिडेंट है, यू कैन से प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन, और यू कैन से दैट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ओके, अंडरस्टूड टिल हियर। ओके, अब बच्चों हम आते हैं इसका सब ऑर्गन्स में, इसके सब ऑर्गन्स में। तो अब हम सब ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशंस के जो मेन प्रिंसिपल ऑर्गन्स है ना, उसके अलावा भी देयर आर वेरियस ऑर्गन्स विच आर कॉल्ड एज सब ऑर्गन्स, जिनका कुछ सिंपल फंक्शंस होता है, कुछ उनका हु आर आल्सो कॉल्ड एज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका स्पेशल मतलब स्पेशल वर्क होता है किसी भी फील्ड में, कोई फील्ड के ये स्पेशलिस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिसेफ। तो इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं आपकी आने वाली स्लाइड्स में। जो सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एज द नेम सजेस्ट, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो आपके हेल्थ के ऊपर ये जो है आपके, या फिर मेंबर नेशंस के जितने भी मेंबर नेशंस हैं उनके हेल्थ के ऊपर ये जो है क्या करता है, उनके हेल्थ के ऊपर जो है रिसर्च करता है, वर्क करता है। तो रिसर्च ऑन हेल्थ, अभी जो आपने कोरोना वायरस के टाइम पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत पॉपुलर हुआ था, बोला गया था कि कहाँ पे है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्यों वो वैक्सीन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये आपका सिंबल है, ठीक है। अच्छा, इसके हेडक्वार्टर्स क्या है, इसके हेडक्वार्टर्स हैं जेनेवा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है आपका कहाँ पे है, आपका यूरोप में है,
वहां पे एक जेनेवा जो है एक सिटी है, वहीं पे आपके किसके हेडक्वार्टर्स हैं, WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। अब हम ILO के बारे में पढ़ते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे, इसका मेन फंक्शन क्या है, टू लुक आफ्टर द वेरियस जो वर्किंग क्लास है उसके बीच में। अब लेबर का मतलब ये मत समझ जाना कि जो सामान ढोल रहे हैं, कुली वगैरह, नो, लेबर डजंट मीन, यहाँ पे लेबर का वो मतलब नहीं है। लेबर का मतलब हम जो भी वर्क कर रहे हैं, आप भी एक, आपके फादर भी एक वर्क कर रहे हैं तो वो भी लेबर है, मैं भी एक लेबर हूं, तो जो भी वर्क कर रहे हैं उनके राइट्स नॉट राइट्स, राइट्स को देखने का काम किसका है, आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। अच्छा, अब इसके हेडक्वार्टर्स का है, अगेन जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये मोटो देखो, स्टॉप चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे काम, जैसे चाइल्ड लेबर अगर कोई मेंबर नेशन कर रहा है, उसके ऊपर बैन लगाना, उसके ऊपर सैंक्शन लगाना, ये सारा का सारा काम किसका है, आपका ILO का है। किसका है, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। अब आगे पढ़ते हैं यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। देखो पहले इसका ये फुल फॉर्म था, बट यहां से इंटरनेशनल को रिमूव कर दिया गया है, और जो आपका करंट फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। जो यूनाइटेड नेशंस में जो है, क्योंकि अब देखो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, यू शुड फील लकी दैट यू वर बोर्न इन इंडिया, और इंडिया एक वेल्दी कंट्री है, ठीक है, अभी तो वेल्दी है, बट आप देख सकते हो कि अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ऐसी कंट्रीज हैं, दोज डू नॉट हैव इनफ फंड टू रेज देयर चिल्ड्रन, तो उन सभी को, उन सब की बेसिक एजुकेशन को, उन सब के बेसिक इम्यूनाइजेशन को, उन सब को आपको फंड प्रोवाइड करने का काम बच्चे किसका है, आपके यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड का काम है। अच्छा, अब ये फंड आता कहां से है, ये फंड बच्चे आपका कहां से आता है, आपका ये फंड आता है वेरियस जो आपके ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ग्लोबल आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं। फॉर एग्जांपल पहला तो यूएन ही देता है इसको फंड, उसके बाद आपका जैसे मैंने बताया था बिल एंड मिलिंडा गेट्स, उसके बाद एक्टर्स, वेरियस एक्टर्स, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सेलिना गोमेज, अगर आप जानते हैं ये कौन है तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो इनका और मेन काम क्या, हाँ, और ये अलग अलग जैसे रन फॉर चाइल्ड जैसे मैराथन्स कराता है, वहां से इसकी फंडिंग आती है, ठीक है। आपने देखिए गेम्स भी देखे होंगे, अलग अलग गेम्स जो होते हैं उसमें भी इसकी फंडिंग्स आती हैं, ठीक है। तो इसके हेडक्वार्टर्स क्या है प्यारे बच्चों, इसके हेडक्वार्टर्स हैं आपके न्यूयॉर्क USA, ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन पे। इसका शॉर्ट फॉर्म है यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को का बच्चे मेन काम क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन पे वर्क करना, साइंस पे वर्क करना, कल्चर पे और वर्क करना, और कोई भी ऐसी चीज जो सोशली, जहां पे आप देख सकते हो सोसाइटी पे वर्क करना, ये आपका क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का काम है। साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का क्या है बच्चों, काम है, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन जो है एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है, और इसका मेन काम क्या है, वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी तो हर कोई प्रोवाइड कर रहा है, प्लस आपका साइंस से रिलेटेड अगर कोई रिसर्च होता है उसको फंडिंग करना, या फिर आपका कल्चर से रिलेटेड कोई जैसे कल्चरल हेरिटेज, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग कल्चर, वॉल ऑफ चाइना देख सकते हो आप, ताजमहल देख सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या हो जाता है कि कुछ टाइम के बाद जो है ताजमहल में जो है वर्किंग, या फिर क्योंकि दीज आर ओल्ड मॉन्यूमेंट्स, और इनको जो है लगातार जो है कुछ ना कुछ इनको लुक आफ्टर करने की जरूरत होती है, और लुक आफ्टर करने के लिए हमको किसकी जरूरत होती है, फंडिंग की जरूरत होती है। तो ये फंडिंग कौन प्रोवाइड करता है, तो ये फंडिंग करता है आपका यूनेस्को, ये फंडिंग प्रोवाइड करता है कौन, आपका यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हेडक्वार्टर्स मैंने ऑलरेडी बता दिया न्यूयॉर्क, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। जो फूड एंड एग्रीकल्चर है, ठीक है, वो फूड एंड एग्रीकल्चर जैसे कि आपको वर्ल्ड बता रहा है कि फूड और एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फूड और एग्रीकल्चर, देखो फूड जो है वो आपका जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई तो फूड की है। अगर आपको फूड ही नहीं खाना होता, सोचो तो फिर लड़ाई किस बात की होती,
असली लड़ाई किसकी है? सोने चांदी की थोड़ी, असली लड़ाई तो फूड की है ना। अगर आप 2 पैसे कमाओगे तो फूड ही तो खाओगे। तो यही चीज है कि जो फूड है वो बिल्कुल डाइट मतलब बिल्कुल बैलेंस डाइट है या नहीं है, या आपका न्यूट्रिशन उसमें कितना है, वो सब चेक करने का काम किसका है? FAO का, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसके हेडक्वार्टर्स है आपके रोम इटली में। कहां पे है? रोम इटली में। ठीक है, चलो अब यहां पे तक का हम जो है आज की क्लास यहीं पे हम फिनिश करते हैं। और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको अगली आने वाली वीडियोस में, अगर आप चाहते हैं कि मैं उनके बारे में डिस्कस करूं, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, हमारी जो अगली वीडियो आएगी वहां पे आपको और भी ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगे, जैसे नाटो, G7, उसके बाद जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे है, एशियान हो गया, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपका थैंक यू कहना चाहूंगा। प्लीज आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें अगर आपको लगा कि वीडियो थोड़ी इंफॉर्मेटिव है, और आई विल ब्लेस यू ऑल, ताकि आप सैनिक स्कूल की जो प्रिपरेशन है उसको उस पर लगे रहें, और एक ना एक दिन आप जो है इसको क्रैक कर सके, बोथ सैनिक स्कूल एंड RIMC। ठीक है, ओके, सो थैंक यू, टाटा, बाय बाय।